A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject Business Studies. I hope all of you are well and studying properly. Dear students, in the previous lecture of Business Studies, we have started our chapter number 2, that was Forms of Business Organization. And in that lecture, we have seen about the introduction of the forms of business organization. Thereafter, we have seen about the classification of business enterprises into three parts: private sector enterprises, public sector enterprises, and joint sector enterprises. Thereafter, dear students, we have discussed the different forms of private sector enterprises, in which sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative society, and company forms are available. And in this chapter, we are going to discuss them one by one. And in the previous lecture, we have started our first part, that was sole proprietorship firm. Dear students, the meaning of sole proprietorship firm was it was a form of business organization that is owned, managed, and controlled by a single owner or an individual is known as the sole proprietorship firm. We have discussed about its different features such as the single ownership, formation and closure, thereafter unlimited liability, the next one individual risk bearing, next one man control, no separate legal entity, lack of business continuity, and small size. All this we have discussed in the previous lecture. Dear students, in today's lecture we are going to conclude about the topic sole proprietorship by जस्ट डिस्कसिंग इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, या फिर हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट टुडेज लेक्चर. Merits of sole proprietorship firm. See over here, the very first merit. What is the meaning of merit? That means a plus point. तो first merit क्या है आपकी? The very first is the quick decision. The decisions are taken quickly in the sole proprietorship firm because in this form of business, the single owner is there and he or she is not needed to consult anyone before taking any decision, and as a result quick or immediate actions can be taken, which brings the flexibility of operations of sole proprietorship. Second merit, confidentiality. The sole proprietor is not expected to share his secrets with other. सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक सिंगल पर्सन है, उसे अपने जो अकाउंट्स हैं, अपने जो सीक्रेट्स हैं, वो किसी से शेयर नहीं करने हैं. इवन एज पर द लॉ, यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने अकाउंट्स को क्या करेगा, पब्लिश करेगा. सो इट इज़ ऑप्शनल. इफ़ यू आर विलिंग तो आप पब्लिश करिए, एंड इफ़ यू आर नॉट विलिंग तो आप पब्लिश मत करिए. See further, all the decisions are taken by the proprietor only, so it becomes very easy for him to maintain the secrecy. यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन ही सारे डिसीजन ले रहा है, इसलिए उसके लिए यहाँ पे सीक्रेसी को मेंटेन करना कंपैरेटिवली क्या होता है, पॉसिबल होता है, फिजिबल होता है, जिससे कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसकी स्ट्रेंथ हमेशा मेंटेन रहती है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इंसेंटिव. इफ़ वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट इंसेंटिव, तो यहाँ पर बेटा देखिएगा कि जो एक सोल प्रोप्राइटर है वो एक सिंगल पर्सन है, और उस सिंगल पर्सन के एफर्ट्स और रिजल्ट के बीच में हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है. इफ़ अ बिजनेसमैन इज मेकिंग मोर एंड मोर एफर्ट्स, देन definitely there will be the probability of earning higher amount of profit, and it used to motivate or induces the sole proprietor. इससे जो sole proprietor है वो induce होता है, motivate होता है और ज़्यादा efforts करने के लिए, ताकि वो अपने return या फिर profit को maximize कर सके. The next one, sense of accomplishment. What is the meaning of accomplishment? That is completeness. When we used to make efforts for some particular work, जब हम किसी particular work के लिए effort करते हैं तो we used to expect कि वो काम complete हो जाए, and when the work used to be complete, then we used to get the
सेटिस्फैक्शन फीलिंग, हमको एक जो फीलिंग आती है वो कौन सी आती है, सेटिस्फैक्शन की आती है। यही है आपकी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। देखिए बताया, देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने लिए वर्क करता है तो एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू द सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर बिजनेस सक्सेसफुल है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या होगा, आपका सेटिस्फैक्शन बूस्ट होगा, इसके साथ साथ जो आपकी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो मोरालिटी है, वो सब क्या होंगे, इन रिटर्न बूस्ट होंगे। नेक्स्ट देखिए, easy to form and dissolve. Next merit is, and the last merit is easy to form and dissolve. That means there are least amount of legal formalities. Most of time no legal formality is there for starting and closure of the business, but in very some exceptional situation a very least amount of legal formality such as licensing is only needed in sole proprietorship firm. Now we will discuss about the demerits of sole proprietorship firm. What are the demerits? The very first is the limited resources. As in sole proprietorship firm, there is a single person who manage, control the business. As simple as that, he is a single person to contribute the capital as well. ये एक सिंगल पर्सन है जो क्या करता है, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है, ईदर फ्रॉम द वेल्थ और फ्रॉम द बोरोइंग्स, या तो अपनी वेल्थ से करेगा या फिर बोरोइंग्स लेगा। बट वी ऑल नो दैट देयर इज अ लिमिट टू क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन। अगर एक सिंगल पर्सन क्रेडिट लेता है तो उसकी भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है कि वो अपने नेम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट लोन नहीं ले सकता, एंड दिस रिड्यूसेस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। और ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की ग्रोथ को क्या करता है, उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, हैम्पर करता है। नेक्स्ट ड्रॉबैक देखिए, दैट इज द लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन ओनली। एक सिंगल पर्सन है तो जो आपकी बिजनेस की कंटिन्यूटी है, जो बिजनेस की लाइफ है, जो वर्किंग है, वो सिंगल पर्सन पे क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। एंड अगर इस सिंगल पर्सन की कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, किसी भी रीज़न से इनकैपेबल हो जाता है, इन दैट कंडीशन जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ बिजनेस है दैट विल कम टू एन एंड। वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। See in this, the sole proprietor is personally liable for all the debts. Sole proprietorship firm में जो ओनर होता है वो सिंगल पर्सन है, एक लौता पर्सन है जो कि सारे डेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इन केस ऑफ हैवी लॉसेस, अगर मान लीजिए लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, द प्रोप्राइटर विल नॉट ओनली लूज ऑल द बिजनेस एसेट्स। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसकी बिजनेस एसेट्स ही लूज होंगी, बिजनेस एसेट्स के साथ साथ जो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी उसको यूटिलाइज करनी पड़ेगी अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। तो लाइबिलिटी कैसी हो गई, अनलिमिटेड हो गई, बिजनेस से निकल के आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी पर्सनल एसेट्स तक आ गई। एंड द लास्ट डीमेरिट दैट इज द लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इफ़ वी टॉक अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो सारी एक्टिविटी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड वी ऑल नो अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। एक सिंगल पर्सन हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ही मे बी अ गुड सेल्स पर्सन, ऐसा हो सकता है कि वो एक अच्छा सेल्स पर्सन हो बट नॉट अ गुड मैनेजर। ऐसा हो सकता है कि वो एक अच्छा अकाउंट्स मेंटेन करने वाला हो बट नॉट अ salesperson. There can be the different things. So it is difficult to find all the skills and expertise in one person. किसी एक सिंगल पर्सन में सारी स्किल्स और सारी एक्सपर्टाइज को फाइंड आउट करना क्या है, बहुत मुश्किल है। एंड सोल प्रोप्राइटर्स जनरली कैन नॉट, अब आगे की बात कहें तो जो सोल प्रोप्राइटर है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दैट इज़ वाई दे विल बी फिनेंशियली अनेबल टू हायर द स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़।
एंड एज अ रिजल्ट जो आपका सोल प्रोप्राइटर है वो क्या होगा, ओवरबर्डन हो जाएगा विद डिफरेंट टाइप ऑफ और विद टू मैनी टास्क, उसको बहुत सारे जो वर्क है वो खुद एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डियर स्टूडेंट्स. Today we have discussed about the merits and demerits of sole proprietorship. In the merits we have discussed quick decision, confidentiality, direct incentive, sense of accomplishment, easy to form and dissolve. And in the demerits we have discussed limited resources, limited life of a business, unlimited liability, limited managerial skills. This is all about today. God bless you all. Lots of love.